Good morning, my dear students. Today we will discuss about respiration. What is respiration? It is the process of exchange of oxygen from the atmosphere. यानी कि atmosphere में से oxygen लेंगे हम and it will be exchanged with the CO2 produced by the cells. That is also known as breathing. यानी कि breathing के दौरान जो CO2 हम produce करते हैं उसको बाहर निकालेंगे और एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन लेंगे, दैट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नोन एज respiration or simply we call it breathing. Respiration involves the following steps. First of all, just now we talked about that is breathing और pulmonary ventilation, जिसमें हमने अभी बात की है कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेंगे और CO2 जो कि एल्वियोलाई में प्रेजेंट है उसको बाहर निकालेंगे. सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज. विच गैसेज? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट विल टेक प्लेस अक्रॉस द alveolar membrane. Where alveolar membrane is present? It is present in the lungs around the alveolar sac. So second step is diffusion of gases, diffusion of oxygen and carbon dioxide. Third step is transport of gases by the blood. And the fourth step again diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues. So diffusion of oxygen and carbon dioxide takes place at two sites. अभी हमने बात की थी पहले भी कि diffusion of gases जो है वो alveolar membrane पर हो रहा है और diffusion of gases जो है वो blood और tissues के बीच में भी हो रहा है. That means there are two sites for diffusion of gases. Fifth step is utilization of oxygen by the cells for the purpose of catabolic reaction or we will call it oxidation. What happens? जो ऑक्सीजन अभी हमने ली है ब्लड से, जो टिश्यूज में गई है, ब्लड से जो सेल्स में गई हैं, सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शंस. दिस ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड and energy will be released and at the same time CO2 also will be released. Now let us first define some definitions about respirations. We should be clear about the respiratory volumes and capacities. First of all, we will discuss about tidal volume. What is tidal volume? Tidal volume is the volume of air inspired or expired during a normal रेस्पिरेशन. यानी कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान कितनी एयर हम इंस्पायर करते हैं और कितनी एयर हम एक्सपायर करते हैं, दैट वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम. तो ये कितना है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml. दैट मीन्स एक हेल्दी मैन जो है ड्यूरिंग 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 6000 से लेकर 8000 ml ऑफ एयर जो है वो इंस्पायर और एक्सपायर करता है. नाउ नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वी शुड सी द मीनिंग इन द वर्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी कि जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, इन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इन एडिशन टू नॉर्मल रेस्पिरेशन, इन एडिशन टू नॉर्मल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन से अलग जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करेंगे बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, यानी कि थोड़ा जोर लगा के जो करेंगे नॉर्मल इंस्पिरेशन से, उसको हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कितना है? इट इज़ नियर अबाउट 2500 ml to 3000 ml. नाउ अगेन सेम टाइप ऑफ डेफिनेशन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी additional volume of air, additional volume of air in addition to the normal air expired by a forcible expiration. जो जोर लगाकर हम एक नॉर्मल एयर से अलग जितना फोर्स लगाकर कितनी एयर को हम बाहर निकालते हैं, कितनी एयर को हम एक्सपायर करते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कितनी है? इट इज़ नियर अबाउट 1000 ml to 1100 ml. Now we are in a position to understand exchange of gases. How does this process takes place? अभी पीछे हमने बात करी थी कि exchange of gases की two sides हैं. जो first site है that is alveoli. Alveoli are the primary site for exchange of gases. Second site कौन सी है?
सेकेंड साइट जो है ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है दैट इज सेकेंड साइट. So, oxygen and carbon dioxide, they are exchanged in these sites by the process of simple diffusion. और process of simple diffusion किसके ऊपर based है? It is based on pressure gradient or we will call it concentration gradient. Now, rate of diffusion also depend on the solubility of the gases. यानी कि गैस जो है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उस मीडियम के अंदर कितनी सोल्यूबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहेंगे. दूसरा जो है इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होना है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है. सो दीज फैक्टर्स आल्सो डिसाइड द रेट ऑफ डिफ्यूजन. पहले हमने बात करी कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी एज वेल एज द thickness of the membrane which is involved in diffusion. Now, what is partial pressure? Pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases is known as partial pressure. हमारे पास कई गैसेज का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से किसी एक गैस का कितना प्रेशर है उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक एयर में इट इज ऑफ दीज two gases and the two sites of diffusion, they are given in the table. We will see in the data is given in the table which will indicate or which will show a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and from blood to tissues. Now, you see this table. These are the respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. This is atmospheric air. The pressure is given in mm of mercury. Now, the pressure of oxygen in atmospheric air is 159, in alveoli it is 104. That means, oxygen has diffused from air to alveoli and pressure has decreased from 159 to 104. Now, it will enter into the deoxygenated blood. Pressure of oxygen in the deoxygenated blood is 40 mm of mercury. Now, oxygen will enter into this deoxygenated blood, that means it will oxygenate this blood and oxygenation of the blood will takes place. And now, the pressure or the concentration of the oxygen in the oxygenated blood is 95 mm of mercury. Now, oxygen from blood will diffuse to tissues. In tissues there will be oxidation, that means catabolic reaction will take place, and during this oxidation process or during these catabolic reactions this oxygen will be utilized and the gradient, pressure gradient or concentration gradient of the oxygen will decrease in the tissues. Now, in tissues it is 40 mm of mercury. Now, in this table we have seen decreasing concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and from blood to tissues. Similarly, in the same manner we see in this slide, similarly a gradient is present for CO2 in the opposite direction. That means, from tissues to blood and from blood to alveoli. In tissues it is 45 mm of mercury, from tissues to blood it will decrease 40. In deoxygenated blood concentration of CO2 is more, that is 45 mm of mercury. Now, it will enter into alveoli. Now, again it is 40, it has decreased and from alveoli it will pass out, CO2 will leave the lungs and its concentration will decrease to 0.3 in the atmosphere. Now, you see in this diagram, we see this is the alveolar air. PCO2 is 40 mm of mercury and PO2 is 104 mm of mercury. Now, this air you see in the diagram, this oxygen, because its concentration is more in the alveoli, it will diffuse into the blood, it will oxygenate the blood and pulmonary vein will carry this oxygenated blood to left auricle. Left auricle will pump the blood into left ventricle. From left ventricle this blood will be taken up by the systemic aorta throughout the body. Now,
from the systemic aorta, blood will enter into tissues. Now, when oxygen enters from blood to tissues, now this is the second site of diffusion. First site of diffusion was at the alveoli. Now, this is the second site of diffusion, and this oxygen which is entering from blood to tissues. Now, it is utilized here during oxidation. Now, oxygen has entered into tissues, and now this oxygen is utilized during the catabolic reaction, during the process of oxidation, and concentration of the oxygen in the tissue has decreased. It has come down. Now, it is 40 mm of mercury, and PCO2 has increased. It is 45 mm of mercury. Why PCO2 has increased? Because CO2 is produced as a result of the process of oxidation, as a result of catabolic reactions. So, now the concentration of PCO2 is more and PO2 is less. So, this PCO2 or partial pressure of carbon dioxide we are talking about. Now, it will diffuse from tissues to blood. Now, systemic vein will pick up this deoxygenated blood which is having high concentration of carbon dioxide, and it will carry it into the right auricle. From right auricle it is going into right ventricle. From right ventricle it is picked up by the pulmonary artery and it is carried to the alveolus. Now, in the alveolus again there is diffusion of gases, that means high PCO2 will diffuse from artery to alveolus, and from alveolus it will be expired, it will be taken outside, where the concentration of the CO2 will be less. It was near about 0.3 mm of mercury. Now, we are in a position to understand very clearly what is exchange of gases and on what exchange of gases depend. Exchange of gases depends on the concentration gradient, or we will call it pressure gradient, and solubility and thickness of the membranes. ये सब बातें हमने पीछे अभी की थी. तो सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है? 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से. सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो सकता है, दैट इज amount of the carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is very much higher to that of the oxygen. क्योंकि CO2 की solubility ज़्यादा है, इसलिए उसका diffusion जो है वो per unit membrane भी ज़्यादा होगा. Diffusion membrane 3 layers की बनी हुई है. सबसे पहले हम इसको डायग्राम में देखते हैं. थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द alveolus. Second is endothelium of the blood capillaries. Third is the basement membrane in between these two layers. That means diffusion membrane is made up of 3 layers. Now, we have seen it in this diagram very clearly. Now, air present in this alveolar wall is only 1 cell thick, जबकि जो टोटल थिकनेस है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की दैट इज लेस देन अ मिलीमीटर. सो जितने भी फैक्टर्स बॉडी के अंदर चाहिए डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन के लिए फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज, वो सारे के सारे फेवरेबल हैं. या हम कहेंगे कि ऑल द फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli, they are all favorable. So, diffusion will take place. Now, we discuss about transport of gases. Transport of gases कहाँ होती हैं, medium कहाँ पर है, where is the medium for the transport? Blood is the medium for the transport of oxygen and carbon dioxide. Blood के अंदर RBC हैं, blood के अंदर plasma present है, and only 3% of the oxygen is transported by the plasma in the dissolved form. Now, we will talk about transport of carbon dioxide. लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है is transported by the RBC. बाकी 70% is present in the
bicarbonate form and only 7% of CO2 is carried in the dissolved state in the plasma. Hemoglobin is a pigment red in color. So, it is the iron containing pigment. It is present in the RBCs. Now, oxygen can bind with the hemoglobin in a reversible manner. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बनाती है और ये ब्रेक भी हो सकता है. इट कैन ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बैक. इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन द रिवर्सिबल मैनर. हीमोग्लोबिन के एक मोलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल कंबाइन कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट बाइंडिंग, यानी कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देन देयर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड फोर्थ इज द टेम्परेचर which affect binding with the oxygen. Now we see oxygen dissociation curve. जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, we see in this slide, this is the graph. A graph is plotted. On one side there is partial pressure of oxygen, on the opposite side we take percentage saturation of hemoglobin with the oxygen. Percentage saturation of hemoglobin with oxygen, यानी कि हीमोग्लोबिन की कितना परसेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन. तो जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, दैट ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ द सिग्मोइड कर्व. दिस इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इट इज यूज्ड इन स्टडिंग फैक्टर्स लाइक PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का CO2 के साथ बाइंडिंग पर, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग पर, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करता है तो इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है. नाउ वी हैव सीन हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस. एल्वियोलाई में क्या है, PO2 इज मोर. व्हेन PO2 इज मोर, PCO2 विल बी लेस, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज लेस एंड टेम्परेचर इज आल्सो लेस. सो ये तो जो सारे फैक्टर्स हैं, दे आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. कहाँ पर हो रहा है ये सब, एल्वियोलाई में. और टिश्यूज में क्या है, टिश्यूज में PO2 कम हो जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है टिश्यूज में कंज्यूम्ड हो चुकी है. तो PO2 कम है, PCO2 ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है. तो टिश्यूज में ब्रेक हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एल्वियोलाई में बनता है. नाउ द कंडीशंस, these are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. That means ये जो हमने हेडिंग दिया है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये मतलब है यानी कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है वो फेवरेबल है और टिश्यूज में ये ब्रेक हो जाती है. टिश्यूज में क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है इसलिए ब्रेक हो जाता है. 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ CO2 विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीना हीमोग्लोबिन. कितना, नियर अबाउट 20 से 25%. तो ये जो बाइंडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ, इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. तो PO2 इज आल्सो मेजर फैक्टर विच विल अफेक्ट दिस बाइंडिंग, क्योंकि अगर PCO2 हाई है और PO2 लो है, कहाँ पर, टिश्यूज में, तो मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक प्लेस. और जब PCO2 लो है और PO2 हाई है, ये कंडीशन कहाँ पर होगी बच्चों, इट विल टेक प्लेस इन द एल्वियोलाई. तो फिर क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ कार्बामीना हीमोग्लोबिन विल टेक प्लेस. यानी कि जो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यूज में बाइंड अप थी वो डिलीवर हो जाएगी एल्वियोलाई पे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से बाहर एग्जिट हो जाएगी, एक्सपिरेशन हो जाएगा. RBCs में एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है. वी सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, दोनों डायरेक्शन यानी कि टिश्यू लेवल पर भी और
एल्वियोलर साइड पर भी। जब टिश्यू लेवल पर PCO2 ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन इसके साथ कंबाइन करता है, तो CO2 प्लस वाटर दे विल मेक कार्बोनिक एसिड एंड दे विल ब्रेक इनटू कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। और जब PCO2 कम हो जाता है एल्वियोलाई में तो it will break into CO2 and water again and CO2 will be released. Now again we see in this slide transport of carbon dioxide. Carbon dioxide जो है it is trapped in the form of bicarbonate. टिश्यू लेवल पर और एल्वियोलाई पर जब ट्रांसपोर्ट होती है तो ये रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ CO2। अभी हमने ये बात की है, दिस इज जस्ट द रेपिटेशन। सो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करते हैं नियर अबाउट 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एबिलिटी है कि वो अपने रेस्पिरेटरी रिदम को, उनके बॉडी के टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कितना CO2 वो प्रोड्यूस करते हैं, उस बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो उसके अपने आप को रेगुलेट कर लेती है। सो नाउ वी विल सी हाउ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड, हाउ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड। दिस इज डन बाय द नर्वस सिस्टम, वी विल कॉल इट न्यूरल सिस्टम। हमारे ब्रेन में एक मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट हैं जो मेनली रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। एक और सेंटर प्रेजेंट है पोन्स रीजन के अंदर, ब्रेन का पोन्स रीजन, दैट सेंटर इज नोन एज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। सो दिस आल्सो रेगुलेट और मॉडरेट द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, कौन से सेंटर से, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल आते हैं और वो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो जाता है जैसी बॉडी को ज़रूरत होती है। एक और कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है दिस इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, किसकी, हाइड्रोजन आयंस और CO2 की, तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट कर देते हैं और कीमोसेंसिटिव एरिया इन टर्न रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है ताकि नेसेसरी एडजस्टमेंट जो कि बॉडी के अंदर चाहिए इन CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, तो वो ये सब रेगुलेट कर लेता है। एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है एसोसिएटेड विद द आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। वो जो भी CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में जो चेंजेज आते हैं उस चेंजेज को रिकॉग्नाइज करते हैं और अकॉर्डिंगली रिदम सेंटर को जो भी एक्शन लेनी होती है उसके लिए वो उसको डायरेक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं है रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए। नाउ वी विल सी डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमेशा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई नॉर्मल काम नहीं करता रहता है, इसमें कोई रेगुलेशन भी है ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। इंस्पाइट ऑफ दैट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारे फॉल्टी हैबिट्स की वजह से। तो वो डिसऑर्डर्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स हैं इन द वॉल ऑफ द ब्रैंक्यूल्स उनके अंदर स्पैज़म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, व्हीजिंग की साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसकी वजह क्या है? हाइपर सेंसिटिव ऑफ द ब्रोंक्यूल्स टू द फॉरेन सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द एयर। यानी कि एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेज प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम? ये एक एलर्जिक डिजीज़ है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, यानी कि जो एलर्जेंस है जिसकी वजह से एलर्जी हुई है उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। फॉरेन सब्सटेंसेज का जो एक्सपोजर है, जो काज हैं बीमारी के, उनसे हट के रहना पड़ेगा। एंटीबायोटिक थेरेपी दी जा सकती है। और तीसरा जो है ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स या इनहेलर्स जो हैं, ताकि सांस लेने में ज़्यादा परेशानी ना हो, नॉर्मल ब्रीदिंग की जा सके, उसको हम सिम्प्टोमेटिक रिलीफ बोलते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या है, जो ब्रोंक्यूल्स है हमारी या एल्वियोलर सैक जिसको हम कहेंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाता है उसको, दैट इज़ नोन एज एबनॉर्मल डिस्टेंशन। किसका? ब्रोंक्यूल्स का या एल्वियोलर सैक का, जिसकी वजह से इन पार्ट्स की इलास्टिसिटी में कमी आ जाती है। इलास्टिसिटी में कमी आने की वजह से जो एल्वियोलर सैक है दैट रिमेन्स फिल्ड विद द एयर,
इवन आफ्टर एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के प्रोसेस में जो एयर बाहर निकल जाती है तो एल्वियोलर सैक एम्प्टी हो जाना चाहिए, लेकिन इस केस में एम्प्टी नहीं होता है, उसके अंदर कुछ एयर रह जाती है। तो इट इज़ ए क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसकी वजह से एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं और रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा कम हो जाता है। तो इसका जो मेजर कारण है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग। तो इसका प्रिवेंशन और क्योर जो है वो बहुत मुश्किल है। इट कैन नॉट बी क्योर्ड परमानेंटली। ट्रीटमेंट जो है सिर्फ डिजीज़ के बढ़ने को सिर्फ रोक सकती है, स्लो डाउन कर सकती है उसके प्रोग्रेशन को। और ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक यानी कि सिम्टम्स को देखते हुए हम पेशेंट को जो रिलीफ देंगे, वी विल मेक यूज़ ऑफ द ब्रोंकोडाइलेटर्स, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। मेन जो वजह है जिसकी वजह से हमें बीमारी हुई है उससे हमें बचना है, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहना है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। ऑक्यूपेशनल यानी कि हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा है, हमारा जो प्रोफेशन है, जो काम है वो ऐसा है जो कि हमारी लंग्स की बीमारी को जन्म देता है। कुछ इंडस्ट्रीज में खासतौर से जहाँ पर ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, वहाँ पर इतनी डस्ट प्रोड्यूस होती है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उस सिचुएशन के साथ कोप नहीं कर पाता। तो लॉन्ग एक्सपोजर टू दी डस्ट इन्फ्लामेशन कर देते हैं लंग्स की, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है। व्हाट इज फाइब्रोसिस? दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और जिसकी वजह से सीरियस लंग डिजीजेस हो जाते हैं। तो इसका प्रिवेंशन और क्योर कैसे होगा? वर्कर्स को ऐसी इंडस्ट्रीज़ में एक प्रोटेक्टिव मास्क पहनकर रखने जरूरी हैं। इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्योंकि 10 से 15 साल तक पेशेंट को पता नहीं लगता उसको कि उसे लंग्स की कोई बीमारी हो सकती है, जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस हैं, दीज आर इनक्यूरेबल। तो ऐसे पर्सन्स को जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अपने आप को ऐसे इरिटेंट पोल्यूटेंट से बचा के रखना है जितना वो बचा सकते हैं। कम से कम एक्सपोजर देना है हार्मफुल डस्ट को वर्क प्लेस पर। और वर्कर्स को इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं उनकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, वो उनको बताएं कि अगर यहाँ इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं, इस तरह के हमारे डस्ट यहाँ से निकलते हैं और इन डस्ट की वजह से ये बीमारियाँ हो सकती हैं, इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। तो प्रोटेक्टिव गियर्स और क्लोथिंग जो है वर्क प्लेस पर पहननी ज़रूरी है, और एक रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूरी है ताकि वर्कर्स को पता लगता रहे कि उसे कोई बीमारी हो तो नहीं गई है, वो अपने आप को कितनी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। तो अब ये होमवर्क करना है बच्चों आपने। वी विल डिफाइन व्हाट इज रेस्पिरेशन, define tidal volume and vital capacity, how does exchange of gases take place, how respiration is regulated, and we will illustrate some respiratory disorder. So this was all about respiration. Thank you.